18th Lok Sabha. It gives me great pleasure to welcome all the members. I am sure you will all help the chair in maintaining the high tradition of this house and thereby strengthening the edifice and the roots of our democratic polity. I wish you all success in your endeavor. Now I would request the Secretary General to lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of the members elected to the 18th Lok Sabha at the general election of 2024, submitted by the Election Commission of India. Sir, I lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of members elected to the 18th Lok Sabha at the general elections of 2024, submitted by the Election Commission of India. I have to inform the House that the Honorable President has nominated the following members as members of the panel of chairpersons: Sri Suresh Kodikonal, Sri Talikotai Raju Thevar Balu, Sri Radha Mohan Singh, Sri Fagan Singh Kulaste, Sri Sudeep Bandopadhyay. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received Please have your seat. Please have your seat. Now here is an important announcement to make. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received a letter dated 17th June 2024 from Sri Rahul Gandhi, an elected member from the Wayanad Parliamentary Constituency of Kerala, resigning his seat in Lok Sabha. The Honorable Speaker has accepted the resignation of Sri Rahul Gandhi with effect from 18th June. The names of members will now be called by the Secretary General for the purpose of making and subscribing an oath or affirmation. The Leader of the House, Honorable Prime Minister, will be called first. Thereafter, members of the panel of chairperson will be called. Then Ministers of Cabinet rank, Ministers of State independent charge and Ministers of State. Thereafter, the names of other members, state, union territory wise, in alphabetical order will be called. The names of members who are not able to take the oath or make the affirmation at the first call will be called again at the end. If the name of any member is not pronounced correctly, it may be kindly be excused. Honorable members, on the name of a member being called by the Secretary General, the member may proceed from the place she or he is occupying to one of the podiums placed on either side of the Speaker's chair. A copy of the form for oath or affirmation in accordance with the third schedule to the Constitution of India, as the case may be, will be kept for the use of the member. The member will face the House while making the oath or affirmation and then wish the chair. Thereafter, the member will proceed to show the original election certificate at the table of the House and sign the roll of members which is placed on the table. Now, Secretary General. Prime Minister Shri Narendra Modi. सबसे पहले सांसद के तौर पर पीएम मोदी शपथ ले रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का
सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री कोडिकुनिल सुरेश, श्री टी.आर. बालू, श्री राधा मोहन सिंह, मैं राधा मोहन सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, कि सत्र पहला सत्र जहां पर सांसद एक एक करके अपने पद की शपथ लेते हुए सांसद के तौर पर और प्रोटेम स्पीकर बृहत्री मैं फग्गन सिंह कुलस्ते जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो आज सभी केंद्रीय मंत्री भी एक एक करके शपथ लेंगे और इसके साथ 280 सांसदों का ये शपथ ग्रहण पहला जो सत्र है 18वीं लोकसभा का, वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री के शपथ के साथ ही प्रधानमंत्री ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली और इसके बाद एक एक सांसद अपनी शपथ ग्रहण कर रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जो कि 7 बार के सांसद हैं, उड़ीसा के कटक से चुन करके आते हैं खुद, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पीठासीन अधिकारी के तौर पर मनोनीत किया प्रोटेम स्पीकर के तौर पर। श्री सुदीप बंदोपाध्याय,
Cabinet Ministers Shri Rajnath Singh, मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो राजनाथ सिंह ने सांसद के तौर पर शपथ ली। एक एक करके तमाम जो सांसद हैं वे शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद के तौर पर शपथ ली। उसके बाद कैबिनेट के उनके सहयोगी भी एक एक करके शपथ ले रहे हैं। उसके बाद बाकी के जो सांसद हैं वे शपथ लेंगे। श्री अमित शाह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अमित शाह ने शपथ ली है। गुजरात से चुनकर के अमित शाह संसद तक पहुंचे हैं और 59 साल की उम्र में एक बार फिर से सांसद बने हैं। 7,44,000 वोटों से जीते थे। एक बेहतरीन जो मार्जिन है वो अमित शाह ने हासिल किया और अब सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। श्री नितिन जयराम गडकरी, सड़सठ साल के नितिन गडकरी एक बार फिर से सांसद के तौर पर मैं चुनकर के आए। नितिन जयराम गडकरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। महाराष्ट्र के नागपुर से सांसद नितिन गडकरी, इन्होंने सांसद के तौर पर शपथ ली। नागपुर से सांसद 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। 1,37,000 वोटों से इस बार नागपुर से उन्होंने जीत हासिल की है। फिर से सांसद के तौर पर चुनकर के 18वीं लोकसभा के सदस्य और इसके तौर पर उन्होंने शपथ ली है। नितिन गडकरी के बाद अब जेपी नड्डा शपथ लेंगे।
श्री शिवराज सिंह चौहान। मैं शिवराज सिंह चौहान जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मध्य प्रदेश के विदिशा से सांसद चुने गए हैं शिवराज सिंह चौहान और 8 लाख से ज्यादा वोटों से 18वीं लोकसभा के सदस्य के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की। सांसद के तौर पर विदिशा सांसद ने शपथ ली है। साथ ही मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं शिवराज सिंह चौहान। तो 65 साल के शिवराज सिंह चौहान विदिशा से भारी मतों से जीते। मनोहर लाल। मैं मनोहर लाल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। हरियाणा के करनाल से सांसद चुने गए हैं मनोहर लाल खट्टर। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और इस्तीफा देकर के दिलवाकर के पार्टी ने इन्हें सांसद करनाल से उतारा था। करनाल से इन्होंने 2,30,000 के करीब वोटों से जीत हासिल की। 70 साल के मनोहर लाल खट्टर 18वीं लोकसभा के सदस्य के तौर पर सांसद के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। हरियाणा के करनाल से सांसद बने हैं। 2,30,000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। श्री HD कुमारस्वामी। तो कर्नाटक से जेडीएस के सांसद हैं HD कुमारस्वामी और सांसद के तौर पर शपथ लेते हुए ಹರದನಹಳ್ಳಿ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। कर्नाटक राज्य के मांड्या लोकसभा सीट से सांसद चुने गए कुमारस्वामी जनता दल सेक्युलर के सांसद के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। मोदी सरकार में मिनिस्टर हैं। 65 साल के कुमारस्वामी 2,84,000 वोटों से मांड्या से इन्होंने जीत हासिल की जेडीएस के सांसद के तौर पर
और शपथ लिए मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री। कर्नाटक के मांड्या से जेडीएस के सांसद एचडी कुमारस्वामी। पैंसठ साल के एचडी कुमारस्वामी जेडीएस से सांसद हैं। श्री पीयूष गोयल।